we are closer, then we'll feel nicer. And I just want somebody to help volunteer to move these slides, because what I've done is I've put questions, which I thought will be a good idea to have some kind of a structured discussion. इसी में पॉइंट्स लिख दूँ? रूपिका हमारी रिपोर्टियर रहेंगी. सो आप लोगों को अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे लगा कि वो हमसे छूट रहा है, या हमसे या रूपिका से, तो प्लीज़ ज़रूर याद करके एक बारी रिव्यू कर लीजिए. कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है लगता है छूट गया तो. एंड हमारे लिए वेणु जी, वेणु भी पॉइंट्स को वहाँ कंप्यूटर में डायरेक्टली नोट करेंगे. So there are 2-3 people who have said that they don't comprehend Hindi. Please feel free if you want to respond in Hindi or in English. Either of the two languages are good. What I said was Rupika is our rapporteur for the session, so if you feel any of your points have not come through, then please review and give your inputs. Venu is also taking points, so maybe we can just sorry? Translation is there. Okay, so if translation is there, then great. Those of you who are listening in Hindi will get the translation in English, and those who are getting the inputs in English will translation in Hindi. So our group is a little bit lucky to have this facility. बाकी halls में शायद ये उपलब्ध नहीं है. So my request is maybe if we can also come a little further in, it will be smaller, nicer and easier to have conversation. Can we do a quick round of introduction? Maybe from here, sir. Pratim Roy from Radio Kotagiri in the Nilgiri district of Tamil Nadu. थोड़ा सा ऊंचा आप बोले, ये माइक दे दे. నామ్ నరసమ్మ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగం రేడియో నుంచి వచ్చినాం. నా పేరు కేశమ్మ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగం రేడియో నుంచి వచ్చాను. My name is Onkar Murthy from Radio Vishnu, Bhimavaram. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సత్య, నేను రేడియో అలా నుంచి వచ్చాను, కాకినాడ, ఆంధ్ర. I am Seema Bharti from Voice of Azamgarh, Uttar Pradesh. जी मेरा नाम पुष्पक है, मैं रेडियो मुस्कान से हूँ, उड़ीसा से आया. मैं गजाला शेख हूँ, मैं रेडियो बुंदेलखंड से हूँ. मैं गजाला शेख हूँ और मैं रेडियो बुंदेलखंड से हूँ. कुलविंदर सिंह अवतार, रेडियो सीचेवाड़, पंजाब. सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार, विकल्प रेडियो झारखंड. शारदा कृषि वाहिनी से हूँ, सुनील, महाराष्ट्र. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है, मैं CRS वाशिम, महाराष्ट्र से हूँ. नमस्कार, मेरा नाम नितिन थेटे है, केवी के प्रवरा CRS, महाराष्ट्र. नमस्कार, माई सेल्फ अमोल देशमुख, CRS स्वरानंत KVK, वाशिम, महाराष्ट्र. नमस्कार, मैं निशा, रेडियो मेवात से फ्रॉम हरियाणा. सेशन में हमें एक बात पूछा गया कि जब कम्युनिटी रेडियो का मैनेजमेंट कम्युनिटी को देने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर विचार क्या है. तो मैंने सोचा कि कुछ हम सेट ऑफ क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे तो हमारे विचार शायद अच्छे से क्रिस्टलाइज होंगे. तो ये अगर आप लोगों को पसंद आए तो हम इसी फॉर्मेट पे चलेंगे. तो वेरी क्विकली आप ये सवाल को देखें और मैं बोलती जाऊंगी ताकि अनुवाद भी हो जाए. Who are the key stakeholders of your community radio? You can go to the next one. Who is responsible for the financial administration of your CR? Is there a CR board, management committee or program management committee in your CR? What is the composition? Have you initiated processes to encourage community members to take responsibilities for programming, editing, day-to-day planning, documentation, financial and monthly or quarterly plan?
The next question, is there CR station, are there any CR stations ready to hand over most of the management responsibility to community members? So if there is any example from here, then it will be a good idea to learn. Sorry, Are there? should we change this Yes, question? please. Just a suggestion that are there any NGOs ready to transfer responsibility to CR station? No, I'm assuming that CR station is being run by the community, or no? No, there is no assumption like no that. The assumption. license is to an NGO Okay. or an institution. So, there is fact that we use the term CR station is only to identify it as an identity, but in the license structure, we still have the parent organization. It could be a KVK, university, educational institution or NGO, which is a license holder. तो एक लाइसेंस का मुद्दा है और एक है कि ऑपरेशनली फंक्शनली हम किस तरीके से ये सोच को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर योर सजेशंस फॉर इंक्लूजन इन द CR पॉलिसी गाइडलाइंस टू रियलाइज दिस विजन? अगर हमें हैंडओवर करने की स्थिति में पहुंच गए हैं तो हमारे पास एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या सजेशन है वो जो पॉलिसी में इंक्लूड हो जाए, क्योंकि आज की डेट में तो लाइसेंसी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, पर अगर नेक्स्ट एंड द लास्ट आई थिंक That's okay. the last. Okay. The one thought I had in mind was अगर ये handover है तो कितने साल बाद, how many years should it take before you say now we are ready to hand over? Do you think that there should be some kind of a minimum time frame? So if you think that these are okay questions, then we will go one by one. Is that okay to the group? Jaya, I just have one. Also, I think it's important for us to be very concrete because it is time for GOPA renewals. So, who does the TRI is having this conversation? Renewed GOPA, who should get? So, it's a good idea to be very concrete about our thinking and provide very concrete suggestions here because it can be immediately implemented quite quickly. Who are more than 3 years old? How many are more than 3 years old? Okay. How many are more than 5 years old? Okay. So these 6-7 stations have to renew their GOPA. है ना? So those who have to renew GOPA, जो वेनु ने अभी बताया, they have to go through a renewal of that GOPA agreement with the ministry. And the ministry was also not clear because in the CR policy guideline, the exact methodology for its renewal was not very clearly outlined. So they sought the advice of TRI, and TRI has now sent a communication to a few CR stations and some people to respond as to what are their suggestions. So this group can also provide inputs on what we think should happen for the next renewal. Matlab, should it be an annual renewal process? Should it be 5 years? Should it be that after a period of time when it comes for renewal, you should consider, are you ready to hand over to community? Should there be something else, or has the CR station got its own identity and own formation that it is itself an entity that should have signed the GOPA now in the second stage? So these are some questions. So you can, while we discuss, you can think over and provide your input. So maybe, is it a good idea to go over? If there are any initial thoughts, I think maybe you can just take those. So, anybody who's got this letter from TRI, communication that you have to respond to? Anybody in this room? 5 साल से ऊपर हो गया जिनका और गोपा रिन्यूअल के लिए रेडी है और आपने मंत्रालय को भेजा है और उसकी वजह से ट्राई ने आपको कुछ फीडबैक के लिए कोई मेल भेजा है, ऐसा कोई है यहाँ पे? इज देयर एनीवन अमंगस्ट यू हैव रिसीव्ड अ लेटर? आप बताएं मैम। हमने हमारा 3 मार्च को अभी गोपा आप उसमें बताएं। 3 मार्च को हमारा गोपा एक्सपायर हो गया, तो जो भी डॉक्यूमेंट था तो हमारे सर ने वो भेजा, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी आपको कोई रिप्लाई नहीं आया है, पर आपको TRAI से कोई
चिट्ठी भी नहीं आई है कि आप अपना विचार बताएं, ऐसे कुछ नहीं आया? नहीं। ठीक है. Anybody else here who has some? No. So this is interesting that no one in this group has. That's okay. But handover के विषय पे क्या विचार है कुछ यहाँ पे अगर बताएंगे लोग तो? अगर आप लोगों में कितने लोग हैं जिनके पास, अगर हम ऐसे चलें, आप अपने की स्टेक होल्डर किनको मानते हैं? कम्युनिटी मेंबर्स को की स्टेक होल्डर मानते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट वगैरह में? कितने लोग मानते हैं? अगर ऐसा खड़ा करें एंड अगर कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, सो क्विकली. I'll speak in English. Yes, please, it gets translated. Translated. So Radio Kotagiri is just a 1-year-old radio. Though we have been there at Keystone as the parent organization, we've been working with Adivasis for the past 20 years over there. So the entire Radio Kotagiri is handled by the community. There is the management of Keystone is not playing any role in that. So it's led by 4 people. One of the persons actually, she's here, she's come, she's in the other group. They're all tribal people from there. They decide what sort of content, what sort of program, they're only doing the whole thing. So we are just listeners to that, the whole process. So that's how it is. Including financial management. Including financial management. So they run exactly, they have to realize how much money they can have, what's the money all about. So they bring it to the Keystone management group. They have a representation in the management group to be able to say, this is the money they want, this is the way they need to cut, what happens. Great. Dhwani Community Radio. So the Mairada was the parent NGO of this community radio. So in the 2010 itself, the Mairada was decentralized, some promoted institution called CMRCs. So Mairada was handed over this community radio station to that CMRC because that CMRC is Community Managed Resource Center. So that resource center is handling this community radio station. All the responsibilities they are taken, including financial matters. They are the decision makers and also they are the register body of 1960 Society Act. So all the board members belongs to self-help group members. So except a license is issued to Mairada. Yes. So now is the stage when you renew your GOPA. So you are a classical example of an organization that is facing this, that today the new GOPA should be signed by who? It's a good question, no? Yes, yes. So maybe you will get some insights as to how you can proceed next step. That's my confusions. Thank you. Registration 2012 में हुआ है. 12 में ना, तो अभी 5 साल में आएगा तब आप इस लाइसेंस को, आपका भी शायद ऐसा होगा कि वो समिति ही अगला गोपा साइन करने की इच्छुक होगी. नहीं, एक्चुअली हमारा ये अगला प्लान है कि अभी संस्था है जिनको ऐसा अभी सोच है और ऑलरेडी एक्सपीरियंस में है. थर्ड two points. One is that when we look at ownership or management, it might be interesting to look at legal ownership and effective ownership as two separate things. Legal ownership we all understand. जिसने sign किया है is a legal owner of the license. Effective ownership बोले तो who owns or manages. I mean manages is a smaller term, but who owns the editorial process, the financial process, and the administrative logistic process. Who owns it, who manages it, who controls it. If your effective ownership is with communities, I would not bother too much about legal ownership. Now, about transiting from a license signed by Sai something, Sai Jyoti, to Lalit Lokmani in the current scenario of acts and policies is impossible. There is no legal provision for us to transfer a license unless we are able to lobby within this period and make that happen. I think that's the idea also, that if there are inputs towards that should also come in. Again, if that is the case, then I would recommend to practitioners here that you have to put in place an effective ownership mechanism, because you may not get the legal transfer rights in the period that you want, because advocacy for law changing, as you all know, is slow and problematic. Let's not figure that it's going to a different ministry
who will just say हमने आपको लाइसेंस दिया, रिन्यू होगा आपके नाम पे. उनको अगर ललित लोकवानी को लाइसेंस चाहिए तो ललित लोकवानी अलग से अप्लाई करेगी. It will be fresh applications. If we are able to do the lobbying, तब तक we cannot hold back the ownership issue in principle. So my recommendation is that start practicing and understanding effective ownership right now, which most of you are doing. You, I think, missed the questions that were placed here for discussion, and you came in a little bit late. So these are already framed in the first set of questions. What Venu suggested was, let's just take a quick round of points about this experience, and then we go somewhat on a structured discussion. Yeah, sure. So that is... I actually have a corollary to what Stalin is saying, if I may. It's on the same lines. Just the reason I asked for everybody to just pitch in, कि आप कहें कि आप क्या सोच रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा है इसके बारे में कि ट्रांसफर हो, किसको मिले, etc. So I Stalin not so much on how much time it will take for the transfer and all of that. If we are able to do the advocacy and the next GOPA, whatever, it could happen very quickly. But my concern is at a larger level is that अभी आपने एक और NGO register कर लिया है, अभी उसके मैनेजमेंट में वही हायरार्कीज ना रिपीट हों आगे चल के, ये थोड़ा किन्हीं लोगों ने सोचा है तो अच्छा होगा बात करने के लिए, क्योंकि दोबारा से हम एक एनजीओ स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं. आपने सोसाइटीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर किया है, फिर आप वही डॉक्यूमेंटेशन रिपीट करेंगी अपने काम में. तो जो स्ट्रक्चर, जिन हायरार्कीज को हम अभी कह रहे हैं कि अरे समुदाय की भागीदारी नहीं थी इसलिए अब हमें ट्रांसफर कर दीजिए, लाइसेंस अब हम चलाएंगे, तो आप ही की जो आप नई संस्था गठित किए हैं उसमें ये हायरार्कीज नहीं आएंगी, उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उस पे थोड़ा लॉन्ग टर्म विचार करना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी. You being promoted at Nagapattinam is initiated and that through by UNDP, and Dan was referred that time. And actually even at that time when the policy was evolving, we had the problem because we had another legal institute which is not having 3 years of existence that time, and because of that Dan from get the license on its own. Now that there is another legal body locally, and there is because they are the local community members, and we are willing to transfer the license to that local institution or community members, whereas procedurally all other assets and other things, transfer of whether DAVP or license, as Stalin told, that unless very clear, we will get stuck in between and we don't know where to move. That unless very clearly comes out, we won't be in a position to hand over to the community. I don't know if you were there when the first respondent actually said, we are 1 year old, we are in Kotagiri, and we have functionally handed over the entire operations management, including financial management of the radio station activities, to the community. Now that the member of the radio station sits on the board of the parent organization and is responsible, answerable for the legality point of view. But operationally, it's completely already handed over to the community in their case. That's one example that they heard. So Atma scheme, of course a fund will be given to, say if it was Keystone, then Keystone would be the recipient. But the funds will be entirely operated and managed by the CR community team. That's what he shared. So maybe there is some lessons to be learned for other organizations which are trying to explore how this is done. A little bit more time, but it's very important what Stalin flagged, that we have to look at it as 2 aspects. One is the community ownership from a functional and the spirit of community radio perspective. And the other is the legality, which is basically a question of building the confidence of the so-called policy makers, right? To believe that communities can handle even if they didn't form a legal entity, for example. I mean, that's the ultimate, no? A community runs and manages its own CR without necessarily being registered as another NGO under the Societies Act. So that is the ultimate vision. But in the transition process, what are the different ideas and where do we think we should go? And one is what we heard, handing over the processes, the management, the capability built up, and what are those stages. So
you can go to the, yeah. First one was who is this? Who are our stakeholders? Who are our key We haven't really stakeholders? answered that yet. हाँ. और मैम हमारा मानना है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर एक एनजीओ एक लाइसेंस लेती है, रजिस्टर कराती है, सो वो एक पर्पस के लिए सोशल चेंज के लिए वो चला रही है, सो वो चलाने के लिए तो एक कमेटी होगी, कुछ मेंबर्स होंगे, हर स्टेशन में ऐसा ही होगा. तो अगर नई समिति आएगी, नई ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक एनजीओ होगी, तो अगर वही एनजीओ से रिन्यूअल करती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो मेरा मानना है कि अगर एनजीओ अच्छा काम कर रही है, और हमारे स्टेशन में ऐसा है कि चाहे एनजीओ हमें फाइनेंशियली हेल्प भी करती है और एडवाइजरी भी काम करती है, पर जो इसे चलाने हैं वो तो जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, जहाँ उसी कमेटी है वही काम कर रही है. सो मेरा मानना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है. सो अगर चाहे दोनों ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए. सो अगर एनजीओ है, पर नेक्स्ट जो कमेटी बनेगी वो भी एक एनजीओ होगी, सो उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा. If I may, just I want to add one point, just to trigger some dialogue. वो ये कि थोड़ा सा शायद मेरे समझ से फ़र्क ये होगा कि मान लीजिए हम एक संस्था है जिन्होंने रेडियो स्टेशन लगाया और हम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो हम कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें रेडियो एक प्रोग्रामेटिकली हम लोगों ने सोचा कि ये होना चाहिए. और उसके बाद जब हमारी समझ बढ़ी, हमने स्टेशन लगाया, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, हमें लगता है कि जो अब हैंडओवर कर रहे हैं वो उसमें ना बाहर के एक्सपर्ट ना कोई, बस इट्स कम्युनिटी लेड, कम्युनिटी ड्रिवन एंटिटी जो अपने आप में ये 100% वही काम करेगा. मतलब एक तरीके से वो एक सोच में हल्का फर्क है कि वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई सारे और भी कार्यक्रम कर रहे होंगे, तो ये एक इंटरमीडिएट नेक्स्ट स्टेप हो सकता है. और अल्टीमेट विजन जैसे बताया कि भाई कम्युनिटी को ही दे दिया जाए, है ना, तो वो थोड़ा सा बहुत एडवांस विजन है, शायद बहुत टाइम अभी और लगेगा. चंदेरी की आवाज़ से इसमें जो हमारा अवतार रेडियो है उसमें सभी करने के लिए एनजीओ ने एग्जैक्टली तो यही इफेक्टिव ओनरशिप की बात हो रही है जी. आज क्या है कि एनजीओ ने एक प्रोजेक्ट बनाया कम्युनिटी रेडियो के नाम पे, उन्होंने एक सोच बनाई कि हमारे स्टेशन में वॉलंटरी बेस पे काम होगा जी. आगे चल के जब इफेक्टिव ओनरशिप की बात होगी तो ये डिसीजन भी वो वॉलंटियर लेंगे, वो लोग लेंगे जो चला रहे हैं कि हमें वॉलंटरी चलाना है, हमें पेमेंट में चलाना है जी. ये फर्क. कैन वी हियर चंदेरी की आवाज़ जो लीगलिटी को छोड़ के? हाँ बिल्कुल. और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग जो काम कर रहे हैं बैठ के ये तय करते हैं कि भैया इस प्रोजेक्ट को अपन रेंट इतना निकाल दें, इलेक्ट्रिसिटी का इतना निकाल दें, ये पैसा बचेगा, ये बांट दो. तो पिछले 3 साल से इसी तरह का चल रहा है ऑलरेडी. जो लोग आते हैं कम्युनिटी में, जैसे अभी हम लोग फिलहाल लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे कार्यक्रम बनाना है, तो भाई उसमें हमने ये देखा कि ये फॉर्मेट आप जो हम कह रहे हैं, ये हम कौन है? जो लोग रेडियो से जुड़े हैं, पूरी टीम, समुदाय के लोग. हाँ समुदाय के लोग. भाई एक लोकगीत गाता है, उसने कहा चलो इसके लिए हम लोकगीत गा दे रहे हैं, तो उसने लोकगीत लिखा और गा दिया. एक ये बोला कि हम फील्ड पे जाते हैं अपने काम से, तो आपके लिए फील्ड से क्या चाहिए, तो उसने फील्ड से बाइट्स ला दी. एक व्यक्ति है कि चलो एक्सपर्ट से इंटरव्यू लेना है, हम एक्सपर्ट के पास चले जा रहे हैं. तो हमसे मतलब कम्युनिटी जब भी मिलके टोटल हम चला पा रहे हैं. हाँ मैम, अभी ये बात आ रही थी कि स्टेक होल्डर कौन है हमारा. मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे जो स्टेक होल्डर है, अभी जो बात हो रही थी कि कम्युनिटी के लोग स्टेक होल्डर हो सकते हैं या नहीं हो सकते. मेरी थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी के जितने भी लोग होते हैं वो सभी स्टेक होल्डर नहीं हो सकते. जैसे अभी हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारा टॉपिक है फॉर एग्जांपल टीकाकरण, तो हम अगर स्टेक होल्डर की मीटिंग में चाहे तो एक ऐसी महिला को ले सकते हैं जो ये टीकाकरण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, चाहे उसके पास एजुकेशन ना हो, तो हम उसको एक स्टेक होल्डर की मीटिंग में ले लेते हैं. साथ में जो ऐसी लड़कियां हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो जो लड़कियों की मैरिट आ गई है, जो फर्स्ट डिवीजन लेकर के आई हैं, तो हम उनको भी ये स्टेक होल्डर की मीटिंग में डाल देते हैं. तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा कम्युनिटी स्टेक होल्डर नहीं हो सकता. जिनको चाहे एजुकेशन नहीं है, लेकिन अगर उनके पास नॉलेज है तो वो स्टेक होल्डर की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. थैंक यू. Yeah, I'm from a farmers federation in Andhra Pradesh. We own this license and all, and we are very newly started. See, I think
this legal ownership have nothing to do with kind of community ownership or a kind of thing. Because who owns is a different matter. But ultimately, whether community is involved in all the stages of this running station is ultimately more important than who owns that paper. That's a different issue. The second thing regarding transfer of this, GOPA or whatever it is, renewal kind of thing. See, if the NGO is really willing to transfer everything, they can accommodate a lot of committee into their board. Like in many cases, there are like a subcommittees in the board, like what Panchayat does. Panchayat will have a lot of subcommittees. Each one handle a different kind of development thing. That is one thing they can do, so that they will have a kind of voice in their board and they can really take decisions. And the second one, if they are really more willing, then they can have a separate exclusive account. That NGO can have a separate bank account, and all community related, radio related financial transactions can go through that account. In that, the joint signatory from the subcommittee of this community radio can become. There are a lot of, it not necessarily it need to be transferred, the GOPA documents kind of thing. Any experiences? Just a suggestion. Just a minute. Sorry, there's more inputs coming in. मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं व्यक्ति की आवाज़ यूपी कानपुर से हूँ कि ये जब कहते हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनको डिसाइड कौन करेगा कि ये स्टेक होल्डर्स हैं? आप बताएं अपने एक्सपीरियंस से। जहाँ तक तो ये है कि कम्युनिटी में स्टेक होल्डर्स, वही अभी जो निशा बात कर रही थी कि हम जो जानता है हम उसको है, और जो नहीं जानता काम करता है वो भी तो स्टेक होल्डर्स हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम यही पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमारे की स्टेक होल्डर्स कौन हैं? हो सकता है हम अपने लिसनर्स को की स्टेक होल्डर्स मानते हो सकता है हम अपने वॉलंटियर्स को की स्टेक होल्डर मानते हो सकता है हम अपने ही टीम में जो काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स उनको। मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी, अभी जैसे राधा जी ने बोला कि जो कुछ जानते नहीं है वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर उनको कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो उनको स्टेक होल्डर की मीटिंग में हम क्यों लेंगे? नॉलेज हर इंसान को होती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, और जहाँ तक हमारा ब्रॉडकास्टिंग जाता है, जो हमारा रेडियस है, वह सारी कम्युनिटी हमारी स्टेक होल्डर है। ये भी हम कह सकते हैं। नहीं, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, पीछे बताइए। इनपुट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अल्फाज़े मेवात का। जब हम कम्युनिटी रेडियो शुरू करते हैं तो वेरी ऑनेस्टली हम उसको एज अ प्रोजेक्ट इंटरवेंशन ही शुरू करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसका एक एक्सटेंशन होगा कम्युनिटी रेडियो, बिकॉज हम जब फील्ड में काम करते हैं वी कैन नॉट रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, तो एक मास मीडियम, एक टूल की तरह इसको लेके चलते हैं। बट जैसे जैसे कम्युनिटी रेडियो में काम करना शुरू करते हैं, हमारी भी जो टीम है अल्फाज़े मेवात की, दैट इज़ कम्युनिटी टीम, कम्युनिटी के ही लोग हैं जो स्टेशन चला रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल ओनरशिप एंड इफेक्टिव ओनरशिप, so legal ownership is with the parent NGO, effective ownership I would say is partially there, and we are striving towards making them financially independent also. So वो process एक evolutionary process ही है, even for the parent organization and for the local team who is running it, managing it. जहाँ तक हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, everybody who is listening to the program or to the radio station is a stakeholder. बी इट वो एक्टिव है या पैसिव है, वो डिपेंड करता है। एक्टिव है तो वो रेडियो स्टेशन में आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, द स्टेशन इज गोइंग टू दैट पर्सन, और पैसिव है वो फीडबैक नहीं दे रहा है बट स्टिल वो स्टेक होल्डर तो है कहीं ना कहीं। और कम्युनिटी लेड अगर हमें बनाना है स्टेशन को, दो चीज़ें हैं, कम्युनिटी बेस्ड और कम्युनिटी लेड। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कम्युनिटी बेस्ड। अभी भी स्टेशन देखा जाए तो कम्युनिटी बेस्ड है, वी आर टेकिंग कम्युनिटीज इनपुट्स, कम्युनिटी के लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, बट टू मेक इट कम्युनिटी लेड वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इन द प्लेस सच दैट वो ट्रांजिशन जो है वो प्रॉपरली उन तक पहुंचे। इफ आई कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बेनो यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। नो, इट्स अ गुड थॉट। सो अगर कम्युनिटी लेड बनाना है तो क्या प्रोसीजर्स, अगर बिना कम्युनिटी के कोई काम चलता है? जंगल से कोई कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी भी इंसान और वो समुदाय चाहे बच्चों का है, चाहे महिलाओं का है, चाहे पुरुषों का है, चाहे युवाओं का है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का है, चाहे यूनिवर्सिटी का है, समुदाय तो वही समुदाय है।
फिर हम ऐसा क्यों ये डिफाइन करना चाहते हैं कि कम्युनिटी वो नहीं है, कम्युनिटी ये है? नहीं, मेरा ख्याल ये मेरे दिमाग में सवाल चल रहा है और काफी देर से, जब से ये पार्टिसिपेशन की बात आ रही है तब से। हाँ, मैं इसमें एक अपना विचार रखना चाह रही हूँ कि स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में हमें पिछले कई सालों से मिलने का, देखने का मौका मिला है। उसमें कई ऐसे संस्थाएं हैं जो गांव में काम करती हैं, फंडिंग बाहर से भी लाती हैं, अच्छा काम भी करती हैं, पर हमेशा कम्युनिटी के मेंबर्स को बेनिफिशियरी के तौर पे देखते हैं। उनको कभी भी सामान्य तौर पे नहीं देखते कि भाई हम एनजीओ हैं, आप बेनिफिशियरी हैं। तो जो ऐसे विचार के अगर एनजीओ हैं, उनके पास लाइसेंस है, तो शायद उन लोगों को ये कम्युनिटी क्या है, ऐसे सवाल बार बार करने को हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना पड़ेगा। पर जो संस्थाएं ऑलरेडी कम्युनिटी को लेकर चल रही हैं और वो उनका एक स्वभाव में ही है, उन लोगों के लिए ये समस्या नहीं है। और कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी ये बहुत मुख्य बात है इस बात को लेना, क्योंकि जो पॉलिसी कहता है जो 10 किलोमीटर के दायरे पे आते हैं वो सबको आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट भी कम्युनिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर, टीचर्स, स्टाफ और जो उसको सपोर्ट करते हैं, परंतु जो कम्युनिटी का दायरा उन्होंने थोड़ा सा सुझाया है कि आप जो लिसनरशिप को लेते हैं उन सबको लेकर चलिए, यानी आपका सोच को थोड़ा बदलने का भी प्रयास है इसमें। तो इस वजह से ये बात है, ऐसा मेरा सोचना है। एक जानना था मुझे कि यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं इसमें कितने लोग कैंपस रेडियो स्टेशंस चला रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रनिंग कैंपस? सॉरी, 6-7 people. 6-7. So I think एक तो ये दोनों, जैसे जय ने पहले कहा, ये दोनों ही तरीके के लोगों में ग्रुप्स में कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी लेड, इसकी परिभाषाएं अलग होती हैं। हाँ। और पॉसिबिलिटीज़ तो परिभाषा के बाद आती है, पॉसिबिलिटीज़ तो फिर अलग ही होगी। द अदर थिंग इज़ कि आपने कहा वेनु कि किस तरह से अगर ट्रांजिशन करना है तो किस तरह से हो सकता है। देखिए, अगर आपको लीगल प्रोविजन मिल जाती है कि आप लीगली लॉबिंग के बाद चाहे तो आप तय कर सकते हैं कि किसको ट्रांसफ़र करना है, ये तो मेरे से लिखवा लो कि तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप तय करें किसको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी, यस, दैट्स अ लॉबिंग पॉसिबिलिटी, बट यू डिसाइड हु टू ट्रांसफ़र टू, दैट्स अ लॉन्ग शॉट। एनीवेज, लेट्स इमेजिन कि वो भी हो जाए। इन द मीनवाइल क्या कर सकते हैं? ट्रांजिशन में क्या कर सकते हैं? आई थिंक अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिटी मैनेज्ड, कम्युनिटी लेड ग्रुप है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वन पॉसिबिलिटी इज कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं विद द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इफेक्टिवली ओनरशिप भी ले लीजिए। जैसे कि लाइसेंस को सरेंडर करना है या नहीं, असेसमेंट कौन करेगा, फाइनेंशियल ऑडिट उस सीआर सेशन के फाइनेंसेस को कौन ऑडिट करेगा, उसको अप्रूव कौन करेगा। These are following questions. Yeah, my suggestion is that can be based on a contract without actually giving over the legal ownership to the community-led group. So that's one. So that's a transitional. I mean, there are several possibilities. I can give examples in several countries where parent organizations have nothing to do with effective ownership, nothing. But legally, they go to the Federation of the Broadcasters every year, the parent organization, to say, "ये हमारा report card है." That's their only function, and that function has been documented in their contracts. So even that they decide. The community-led group decide who from the parent organization will represent our work in legal situations. Even that they have decided. So there are various models available. So to look at other global models. Okay. अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। द डे वन जब से हमारा रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ, कैन वी जस्ट गेट योर थोड़ा सा जब से हमारा रेडियो स्टेशन, आई एम फ्रॉम वॉइस ऑफ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं। जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो दे आर ऑल, क्योंकि हमारी जो खुद की जो एनजीओ की भी
कमेटी थी उसमें भी 70% जो है वो टोटल जो लेट डाउन कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग उसमें शामिल हैं। तो जब हमारे मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमें क्या करना है, लाइसेंस मिल गया कैसे क्या करना है, तो उसमें से जो कुछ पर्सन्स थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छा अब हम करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट का हमारे कोई रोल नहीं है, हमारे जो टोटल स्टेक होल्डर्स हैं वो हम कम्युनिटी से बात करते हैं। और इसके बाद के क्वेश्चन में मैंने देखा था, वो शायद हम बाद में आपसे वो डिस्कस करेंगे, कि हमारी जो प्रोग्रामिंग कमेटी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें ये पर्सन आते हैं और वो इतना वॉलंटरी आते हैं कि वो अपने आप बता देते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट मीटिंग या हमारे ये इशू है और इस पर हम बुला रहे हैं, तो वो अपने आप बोलते हैं ये मेरा मामला नहीं है, इसमें इनको कम्युनिटी से अगर आप बुला लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई थिंक इट इज़ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहाँ वो ये खुद तय करते हैं कि स्टेक होल्डर मीटिंग्स में भी कौन से स्टेक होल्डर आने हैं, दे सजेस्टेड देम। आई थिंक प्रोग्राम्स दे आर बिग। श्योर, आप भी कुछ कहना चाहें? जी, एक्चुअली मैं रेडियो स्टेशन से नहीं हूँ, मेरे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कम्युनिटी वेस्ट, मतलब कम्युनिटी वेस्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जब यहाँ मतलब कम्युनिटी ऑनरशिप की बात आती है तो जैसे मैं थोड़ा टाइम लूँगा, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बिल्कुल कम टाइम में बता। हाँ, तो नहीं, जैसे हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं, है हमारे यहाँ पंचायती राज है, जो मतलब फ्रंटलाइन गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर है, आशा है, आंगनबाड़ी है, तो ये भी हमारे की स्टेक होल्डर हो सकते हैं। I think that's a very good input. Members of the panchayat, पंचायत, आशा, frontline workers. फ्रंटलाइन, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सब स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स हैं चाहे वो रिपोर्टर्स हो वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और जितने लाइन डिपार्टमेंट से वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स के लिए ये कहना कि जिनको नॉलेज है वही है स्टेक होल्डर्स उसमें, ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर कम्युनिटी रेडियो में देखा है कि लोग कहते हैं अब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आप जानकारी देने वाले कौन होते हैं? उनको सब पहले से मालूम है, आप जस्ट उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं बस। थैंक यू। हमने ना इस चर्चा के सिर्फ 2 मुख्य विषयों पर चर्चा की है और हमारे पास केवल 10 और मिनट है, ठीक है? तो हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सामूहिक रूप से कुछ रिस्पॉन्सेस को देने पड़ेंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगला क्वेश्चन का मोटा मोटी हाथ उठाकर बताएं कि इसका आंसर 3 हो सकते हैं। मेरे संस्था की फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसका एक आंसर हो सकता है हमारे संस्था की फाइनेंस डिपार्टमेंट। दूसरा हो सकता है कम्युनिटी रेडियो के स्टेशन मैनेजर। तीसरा हो सकता है यस हमारी सीआर स्टेशन की बोर्ड बनी हुई है। तो ये 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, उसमें आप जस्ट मोटा मोटी बताइए इसके अलावा कुछ और आंसर्स हैं तो, कि हमारे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर सीआर। तीनों ही नहीं हो सकते ना, रिस्पॉन्सिबल में एक ही होगा ना। हाँ, तो कौन है? मतलब पहले का आंसर कितने लोग? पेरेंट एनजीओ या पेरेंट इंस्टीट्यूशन? पेरेंट इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए वहाँ, इट्स एन ऑप्शन। कितने हाथ थोड़ा सा ऊपर खड़ा करें फर्स्ट आंसर के लिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ आवर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सीआर। 5. Okay. So can I hear from you? Fazimabad till now in 2 years it's the management committee of CR, but we know in case of emergency the fallback option is the parent organization. Okay, so management committee manages the finance. Management committee of the CR station कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। I think आपके केस में क्या था? Management committee is distinct from the parent. Just confirm. हाँ, ये मैनेजमेंट कमेटी सीआर के लिए बनी हुई मैनेजमेंट कमेटी ना, उसी का हाथ खड़ा किया ना सब लोगों ने। अच्छा, ठीक है। कि ये मैडम पूछ रहे थे कि क्या मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही है जो जिम्मेदार है। थर्ड ऑप्शन है कि आपने एक सब कमेटी फाइनेंस की बनाई है, जिसको मतलब ये जैसे फंड एडवांस होती है कि आप इतना का खर्चा बताइए, फिर आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाइए, फिर अपना नेक्स्ट लॉट का लीजिए, इस तरीके से। So you're saying that is responsible for the CR? It's a separate. Yes, a finance subcommittee. Anybody with this kind of experience?
पेरेंट इज देयर अ बोर्ड? कितने स्टेशंस में ऐसा प्रोग्राम कमेटी या मैनेजमेंट कमेटी या प्रोग्राम मैनेजमेंट कमेटी या बोर्ड कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए नहीं है? सब लोगों के स्टेशंस में है। अब प्रोग्राम कमेटी जैसे रेडियो स्टेशन के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए कोई कमेटी आपने बनाई है? For examples, actually, one we heard that the management after, like in चंदेरी की आवाज, that उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. We heard here that we are only we have the 4 members and we have one reporting kind of a link to the management. They represent in the management. We heard here that they have given the operations and to the station manager, and then the station manager in fact has a flexible membership in the management committee, including bringing people on board on a need based scenario. So 3-4 models have emerged. We heard also KVK, where the Atma scheme management is with the project head, and also the committee consisting 21 members from various local departments and all community based. हाँ, वेणु का पूछना था कि कई बार ये कागजों में तो बहुत बढ़िया तरीके से होती हैं और कायदे से मीटिंग्स भी कर लेते हैं, पर इंडिपेंडेंस रेडियो स्टेशन को उतना अधिक नहीं हो पाता है। मतलब तो है कि नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, नहीं हो पाता है, या शायद धैर्य नहीं है हम लोगों को ये बोलने का कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, शायद क्योंकि बहुत देर तक हम काम करेंगे एक दूसरे के साथ, तो शायद इस बात का एक्सप्रेशन आसानी से होगा। लेकिन ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं तय करे कि आज क्या बजाना है, नहीं क्या बजाना है, नहीं। ओके, सो दैट्स अ गुड वन। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में आए। Sorry, I'm just coming. I'm just trying to find my way with this computer. No, I think Rupika, you got the inputs. Okay, so just pass over. What is the composition? We heard a little bit about this. हाँ, ये बात है जो मैं सोच रही थी कि स्टालिन ने भी फ्लैग किया था, थोड़ा वेणु ने भी बताया, ये जो ओनरशिप का जो है ना, और पीछे से भी आप लोगों ने भी बताया, अल्फाज़े मेवात ने भी, कि हाँ ये ट्रांजिशनल है। ये कभी हम किस लेवल पे हम कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग में ला रहे हैं, उनको एडिटिंग में ला रहे हैं, उनको हम डे टू डे प्लानिंग में ला रहे हैं, उनको हम डॉक्यूमेंटेशन में ला रहे हैं, रिपोर्टिंग करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, पार्टिसिपेशन करना है टू कोई कॉन्फ्रेंस है जैसे ये वाला, कौन जाएगा? क्या ये तय करके हुआ था कि हमेशा डिफैक्टो स्टेशन मैनेजर ही आएगा? तो इस तरीके के भी मुद्दे हैं, मतलब डे टू डे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एंड मंथली क्वार्टरली प्लानिंग। तो इस तरीके के कुछ अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें। Can I add one little thing? Yes, please. मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन इसलिए करना चाहती हूँ कि मान लीजिए एनजीओ के पास एक प्रोजेक्ट आया स्वास्थ्य के ऊपर, क्या सीआर स्टेशन की मैनेजमेंट कमेटी के पास ये इंडिपेंडेंस है कि वो बोले कि हम अगले 3 महीने स्वास्थ्य पर कोई कार्यक्रम नहीं बनाना चाहते हैं, हमारे हिसाब से इस पूरे 2 महीने ये कल्चरल program chalega, that's as a whatever, and then any experiences to that effect, so then we are clear that the management committee is very strong and can say no to programming also. Talked of independence in decision making, do you all think that that should be there? Yes. Once it is handed over, there is already. If you're talking about effective, then that is where decision making is a important part of it. So I think that is what it is, and that's what I'm looking at. Okay, thank you. We have been asked to close. Although there's one last question, you can just take it and take a look at the question and we'll disperse. अगर ये करना है तो पॉलिसी गाइडलाइंस के लिए कुछ सुझाव है, तो आप लोग इसको सोच के बाद में आप मेल भेज दीजिएगा। जब भी आपका जो विचार है, आप एक सजेशन आए 10 साल, इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं। These ideas in our own stations.